Let us turn to 1 Kings chapter 17 verse 8. पहले राजाओं का किताब उसका 17वां अध्याय 8वां वचन देखेंगे. Let us see what really happened to a very poor widow in those days. और एक बहुत ही गरीब विधवा उन दिनों में उसके जीवन में क्या हुआ ये देखेंगे. I will read from verse 8. 8वें वचन से पढ़ूंगा. I am teaching from the Bible, from the Old Testament, from the scriptures. Turn with me to 1 Kings chapter 17 verse 8. Then the word of the Lord came to him saying, he means Elijah, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath, came to the gate of the city. Indeed, a widow was gathering sticks. And he told her, please bring me a little water in a cup that I may drink. और 8वें वचन से पढ़ रहा हूं. तब यह परमेश्वर ने यह वचन एलिया के पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सरपात नगर में जाकर वहीं रह. सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है. अतः वह वहां से चल दिया और सारपात को गया. नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी. उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ. He met that widow. He asked a cup of water. So she was going to bring that cup of water because water was not a problem. और जब वहां पर वो पहुंचा तो वो स्त्री से विधवा से कहता है कि मेरे लिए पीने के लिए पानी ले आ. तो वो वहां से जाती है पानी लाने के लिए. Readily she goes to. There was no question. Immediately she goes to bring pani. और फिर उस पे कोई सवाल जवाब नहीं था. वो तुरंत ही जाती है पानी लेकर आने के लिए. Many people are very okay till this point. और कई लोग इस स्थल तक तो बहुत ठीक है. They have lot of pani, they can give pani. बहुत पानी है तो वो दे सकते हैं. What they have lot of things, so they give. और बहुत इस क्षेत्र में बहुत बातें हैं तो मैं दे सकता हूँ. Now comes the difficult part. लेकिन अब मुश्किल बात आती है. This many people don't know. और कई लोग इसको नहीं जानते. What breaks your poverty is not when you give pani. और जो आपके गरीबी को तोड़ता है वो नहीं है कि जब आप पानी दे देते हो. Today when I say give, no, I give. और जब मैं आज कहता हूँ कि देना है तो वो कहते हैं कि मैं तो देता हूँ. हर एक महीने दे रहा हूँ, कभी भी दे ही रहा हूँ, और क्या देने. They make us guilty. वो हमें दोषी ठहराते. We feel that अरे हम गलत बोल दिया क्या. They behave like that. वो ऐसा व्यवहार करते हैं. My friends, you better be very vigilant in breaking the poverty cycle than saving your skin. और आप अपने जीवन में जो गरीबी की रील कटी है उसे तोड़ने को देखें, ना कि अपने आप का बचाव देखें. Then when she was going, he called her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. जब वो वहां लेने जाती रही थी तो उससे पुकार कर वो कहता है कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ. Now comes the problematic part of giving. अब देने की मुश्किल बात यहीं आती है. I am talking about this part only, not the other part. मैं इसी भाग के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे भाग के बारे में पानी देने का वो सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. इधर रोटी देना बहुत मुश्किल था क्योंकि उधर कुछ नहीं था, रोटी नहीं था. See the truth. As the Lord your God gives, I do not have bread. See the truth. She is telling, I do not have bread. Only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. I am gathering a couple of sticks that I may go in, prepare it for myself and my son. We eat it and we will die. That she is going to make 2 chapatis. Right? She is going to make 2 chapatis, so she has only flour for 2 chapatis and some oil. So mix करके सूखा रोटी करेगी लगता है. So they are going to eat that and drink that pani and die. That's all. End हो गया. उसका नहीं, सारा उधर का सारा लोग का ऐसा ही हो गया. बहुत लोग मर गए. Now this was very difficult. और ये बहुत मुश्किल अवस्था थी. Sometimes, people say that it was very unnatural or disheartening for Elijah to ask like that to that lady. Elijah said, do not fear, go and do as I have said. Make me a small cake from it first and bring it to me. And afterwards make some for yourself and your son. और एलिया उसे उत्तर देता है,
कई लोग कहते हैं ये बड़ा निर्दयी जवाब था, लेकिन एलिया उससे 13वें वचन में कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। I'll tell you, this is a character of God. ये परमेश्वर का चरित्र This है, is not a character of man. ये मनुष्य का चरित्र नहीं If है। it was you and me, we should have said, okay, now you go eat, I'll come and do something else. We और should have said that way. ये परमेश्वर का चरित्र है, ये इंसान का नहीं, क्योंकि अगर आप और मैं इस स्थान पर होते तो हम कहते ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसे तुम कर लो, मैं और कोई जुगाड़ कर लूंगा। But I think I know God. God is like this only. और मुझे लगता है कि परमेश्वर ऐसा ही है। Sometimes you may feel, how can it be done? और कई बार आपको लगेगा कि मैं ये कैसे कर पाऊं। I'm not talking about giving what you have, that is giving pani. और मैं इस विषय में बात नहीं कर रहा कि जो पहले से आपके पास है वो उसे देना, यानी पानी को देना। I am talking about giving that bread when you don't have bread. You are at the verge of your death. You have few rupees in your pocket. And God is telling to give those things. और मैं आपसे कह रहा हूं उस रोटी को देना जो आपके पास अभी बहुत कम है और आप ही दुख में हो कि कैसे इसे आगे ले जाया जाए। Today I have seen people walking in riches because somewhere down the line they have paid the price like that. और आज मैंने कई लोगों को देखा है जो धन के साथ जी रहे हैं, क्योंकि कहीं तो उन्होंने अच्छा दाम उन्होंने चुकाया है। I'll tell you, I have a very good friend in the Lord. There was a time he had just 300 rupees in his pocket. God said, you put that 300 rupees inside that offering box. He was far away from his home. If he put that, he has to walk 15 kilometers to his house. But he put that 300 inside that box of offering. I'll tell you something. He changed the poverty cycle in which he was born. And I tell you, today, over the years, he has gone to different levels of life in his life. और मेरा एक अच्छा मित्र परमेश्वर में ऐसा था जिसके पास केवल 300 रुपए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि उसे भेंट में अर्पण कर दे तो उसने वो 300 रुपए डाल दिए। वो अपने घर से बड़ा दूर रहता था, 15 किलोमीटर उसे वापस चलकर जाना पड़ा था, लेकिन उस काम को करने से, जब परमेश्वर ने बात उससे कही, उसे पूरा करने से उसके जीवन में जो गरीबी की चक्रव्यूह थी उसे उसने तोड़ दिया और आज वो अलग ही एक क्षेत्र में है। When I'm saying that you need to use your faith to give, means you need to use your faith to give. Nothing else will be there. और जब मैं आपसे कहता हूं कि अपने विश्वास का आपको इस्तेमाल करना होगा जब आप देते हो, तो सचमुच आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल So she went away and did according to the word of Elijah. And he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. 15वें वचन से इस प्रकार लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। I have seen tremendous examples when people gave what they had out of nothing. It broke the poverty cycle they had in their lives. और मैंने ये अपने जीवन में कई बार देखा है, जब लोगों ने, जब उनके पास कुछ ना था उसमें से भी उन्होंने निकाल कर दिया है, तो परमेश्वर ने उन्हें उस गरीबी के चक्रव्यूह से बचाया है, छुड़ाया है। I want to tell each and every one of you, you may have been born in a poor family. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आप एक गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। Maybe you are living a poor life. शायद आप एक गरीब जीवन बिता रहे हों। But you can break the backbone of poverty and become rich according to God. और लेकिन आप इस गरीबी के रील की हड्डी को तोड़कर परमेश्वर के अनुसार धनी बन सकते हो। God's will is not his children be poor in this world.
परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि उसके संतान इस दुनिया में गरीब बने। He was rich. He became poor so that we through his riches, through his poverty will become rich. और वो धनी था लेकिन हमारे लिए वो गरीब बना ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम धनी बन सके। God has taken our poverty on him so that we can be rich. परमेश्वर ने हमारी गरीबी को अपने आप पर ले लिया है ताकि हम धनी बन सके। But still it is a choice you have upon you. लेकिन आज भी ये चुनाव है जो आपके पास है। That's why it says you might become rich, you may not become rich. और इसलिए कहता है कि शायद तुम धनी बन जाओगे क्योंकि शायद आप नहीं भी बनोगे। Today, if you want to break that poverty cycle over you, you enter the secret place, hear his word, and demonstrate your faith by sacrificially giving. और अगर आज आप उस गरीबी के चक्रव्यूह को आप तोड़ना चाहते हो तो आप उस गुप्त स्थान में प्रवेश करें, उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार आप देना शुरू करें और अपने गरीबी के उस चक्रव्यूह को तोड़ दें। Everybody who gave out of their sacrifice, they became extremely rich in their lives. और हर एक वो व्यक्ति जिन्होंने अपने बलिदान देकर उन्होंने दिया था वो अपने जीवन में धनी बनते गए। Some people have given sacrificially, but they have not become rich. कुछ लोगों ने बहुत बलिदान के साथ दिया लेकिन वो धनी नहीं बन पाए Because they were afraid of riches. क्योंकि वो धन से डरते थे। There is a very good friend of mine. He hates to be rich. He is an extremely sacrificial giver, but he doesn't want to be rich because he is afraid that if money comes into his life, he may leave his God and run away towards the devil. That's what is his fear. मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो बहुत बलिदान के साथ वो हमेशा देता है लेकिन धन से वो डरता है, ये सोचकर कि अगर धन उसके जीवन में आ गया तो फिर वो परमेश्वर से दूर जाएगा और शैतान के करीब पहुंचा जाएगा। Don't bring such people as examples because God respects their views and God honors what they respect and they carry their faith. और ऐसे लोगों को उदाहरण ना बनाते जाए क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है जो अपने विश्वास के अनुसार उनके जीवन में फल होता है। I am not talking about such people as an example in this platform. I am talking about word of God, the blessings of the word of God which is upon every child of him. और मैं ऐसे लोगों के विषय बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं जो आशीष परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक परमेश्वर के संतान के ऊपर है। Now in the New Testament there was a church called Macedonian Church. और नए नियम में मैसेडोनियन कलीसिया का नामक एक कलीसिया थी। Macedonian Church. मैसेडोनिया की कलीसिया। Okay, that was a very very poor church. वो बहुत ही गरीब कलीसिया। Now 2 Corinthians chapter 8 verse 1, 2 and 3. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय पहला दूसरा और तीसरा वचन। Brothers, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction and the abundance of their joy and the deep poverty abound the riches of their liberality, that I bear witness that according to their ability, beyond their ability, they were freely willing. That's how they gave. और यहाँ पर पहले वचन से इस प्रकार लिखा है, अब है भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। Their giving was astounding, it was in a higher proportion than what they were having. और उनका जो देना था वो जो उनके पास था उससे कई ज्यादा बढ़कर था। Yeah, they were in deep poverty. वो बहुत ही कंगालपन की अवस्था में थे। That means they had nothing. उसका अर्थ है कि उनके पास कुछ नहीं था। But they gave liberally. लेकिन बड़े उदारता से उन्होंने दिया। What is the matter? Their salary was 1,400 rupees, I think. उनकी तनख्वाह शायद 1,400 रुपए थी। But in that they gave 1,000 rupees. लेकिन उसमें से उन्होंने 1,000 रुपए दे दिया। Very difficult. 400 rupees they were living with. और 400 रुपए में वो जी रहे थे। I'll tell you, that is the secret of breaking the backbone of poverty. और मैं आपसे कहता हूँ ये वो रहस्य है कि आप किस प्रकार गरीबी के रील की हड्डी को तोड़े। Or if God says,
give that 1,400 rupees, you have to give all the things. और अगर परमेश्वर कहता है कि वो 1,400 रुपए भी दे दे तो वो पूरा ही देना है। I'll tell you something. There was a time I and my wife, we were earning very less and we were in a great poverty. और ऐसा एक समय था मेरे और मेरे पति के जीवन में कि हम बहुत कम रकम कमा रहे थे तनख्वाह के तौर पर और हम बहुत गरीबी में जी रहे थे। So one day we both were counting the money, how much we had, how much we have earned. और एक दिन It was first of a month, I think. और एक दिन हम गिनती कर रहे थे कि कितना पैसा हमने कमाया है। महीने का पहली तारीख थी। So 2,000 rupees we had. तो 2,000 रुपए हमारे पास थी। Okay. I think God immediately gave an opportunity. Elijah came to our house. और परमेश्वर ने मुझे लगता है हमारे जीवन में एक मौका दिया। एक एलिया हमारे जीवन में भी आया। When Elijah came, he was a brother of mine. He didn't eat for 2 days and he said, Anna, you have 2,000 rupees. Please give me. और वो 2 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया था। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, भाई क्या आपके पास 2,000 रुपए है, क्या आप मुझे दे सकते हो? So it was a shock to me how he knows we have only 2,000 rupees. तो मैं बहुत चौंक गया था कि ये व्यक्ति कैसे जानता है कि हमारे पास केवल 2,000 रुपए है। I looked at my wife because she has to say yes. मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा क्योंकि मैं वो हाँ करना, उसका हाँ करना। She was very ready. She said, "Let us give 2,000." और वो पूरी तरीके से तैयार थी। वो कहती हाँ हम 2,000 दे देंगे। Because I was ready before she said. I was also I wanted to give him that 2,000, but sometimes wives don't agree. और मेरे हृदय में था ही कि हाँ हम दे देते हैं 2,000 रुपए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अगर पत्नी ना माने तो कैसे? Because wives are little thrifty, little they are more towards savings. और क्योंकि पत्नियां जो होती है वो पैसों को बचाने के विषय में ज्यादा सोचते हैं। I'm not underestimating that, but wives need to be generous also. लेकिन उसको मैं कम नहीं मानता, लेकिन पत्नियां जो है उन्हें उदारता में भी जीना है। So we gave 2,000 rupees to him on that day. तो हमने उस दिन 2,000 रुपए दे दिए। I'll tell you, we have broken the backbone of poverty in our life. और मैं आपसे कहता हूँ कि हमने गरीबी की उस रील के हड्डी को उस दिन तोड़ दिया। It was very difficult. वो बहुत मुश्किल था। There was no way we can get even a 10 rupee after that. और उसके बाद एक 10 रुपए भी हमारे हाथ में होने की कोई संभावना नहीं थी। We both and my wife was carrying. We had to go 30 days. How? और हम दोनों यानी मैं और मेरी पत्नी, और वो गर्भवती भी थी उस दिन उस समय, तो हमें पूरा महीना 30 दिन निकालना है। अब कैसे करें? I'll tell you, a step of faith will break the backbone of poverty. मैं आपसे कहता हूं कि विश्वास का एक कदम उस गरीबी की रील की हड्डी को तोड़ देता है। It was not once it happened in our lives, it happened many times in our lives. और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में ये केवल एक ही बार हुआ, हमारे जीवन में कई बार ये घट चुका है। Every time God spoke and God opened the windows of heaven and he has blessed us. हर एक समय परमेश्वर ने बात किया और परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखों को खोल दिया। Yes. और परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया। God has not just given 2,000 and 5,000, he has given big amounts of money, which is God will do impossible things in our life. और परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया कि 2,000 रुपए या 5,000 रुपए हमें दिया है, लेकिन बड़े बड़े रकम परमेश्वर ने हमें दिया। जो असंभव बातें हैं वो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Yes, many times. कई बार When we went into the secret place, God always said, give this, sow this. Once I was praying for a big car in my life. और परमेश्वर ने हमेशा हमसे बात किया कि इस बात इसको बो दे, उस चीज को दे दे। एक बार हम बड़े से एक गाड़ी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। I was praying for 4 years. और 4 सालों तक मैं प्रार्थना कर रहा था। I had no money to buy car. और मेरे पास कोई पैसा नहीं था गाड़ी My salary was 8,000 rupees. और उस समय मेरी तनख्वाह 8,000 रुपए थी। My wife's salary was 12,000 rupees. मेरी पत्नी की तनख्वाह 12,000 थी। So we both earned 20,000 rupees. और कुल मिलाकर हम दोनों की तनख्वाह 20,000 थी। We cannot buy a second-hand car also. हम एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। But I was praying for a car which costed several lakhs of rupees. लेकिन मैं एक कार के लिए प्रार्थना कर रहा था जो कई लाखों रुपए की थी। Not one day, every week I will pray. और एक दिन के लिए नहीं, हर हफ्ते मैं इसके लिए प्रार्थना करता था। Okay? Every week when we use a taxi or anything, we always prayed. As a family we prayed.
और जब भी हम एक टैक्सी का इस्तेमाल करते थे, जब भी हम यात्रा करते थे, हम प्रार्थना करते थे, एक परिवार जुट होकर हम प्रार्थना करते थे। Definitely. One day, God told me, give your bike, sow your bike. और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अपने बाइक को एक बीज के तौर पर बो दे। I came inside the house and told my wife, God is telling me to sow my bike. और मैं घर पर लौट कर आया और मैंने अपने पत्नी से कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि अपने बाइक को एक बीज की तरह बो दे। You know what she said? क्या आप जानते हो उसने क्या कहा? Sow it immediately. उसने कहा तुरंत ही बो दो। But I was little hesitant, you know. लेकिन Without the bike, I cannot go anywhere. मैं हिचकिचा रहा था क्योंकि अगर बाइक नहीं होगा तो मैं कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगा। People who are having bikes, you will understand my plight. और जिनके पास बाइक है वो जान पाएंगे कि मेरी अवस्था कैसी थी। So I was looking here and there, waiting. तो मैं After इधर 1 week, देख she रहा said, था। bike is still there, you are not sown. और एक हफ्ते के बाद मेरी पत्नी से मुझसे पूछा कि बाइक तो अभी भी यहीं पे खड़ी है, आपने अभी तक बोया नहीं है। I immediately got ready and went out with the bike straight to VT station and packed the bike and sent it to my friend. I gave it to him. और मैं तुरंत ही वहां से Who was VT a minister स्टेशन of गया God. और एक परमेश्वर के दास को मैंने वो भिजवा दिया। On the way to VT station, the police caught me because I was not having helmet. और VT स्टेशन जाते रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि मैं हेलमेट नहीं पहन रहा था। I paid a fine also मैंने वहां पर फाइन भी भरा and took my bike to VT station और and फिर sent it. अपने बाइक को VT स्टेशन लेके गया और वहां से पार्सल कर दिया। A brother-in-law, Lord, he came to my house after that and he told me, come with me. And he took me to a car showroom and he gave me a brand new car. और परमेश्वर में एक भाई मेरे घर पर एक दिन आए और उन्होंने मुझसे कहा मेरे साथ चलो, और वो मुझे कार के एक शोरूम में लेके गए और वहां पे एकदम नया एक गाड़ी मुझे उन्होंने दिलवाया। I was driving a bigger car than my principal. I was going to my college. 8,000 salary, but 8 lakhs गाड़ी। और मैं अपने प्रिंसिपल से भी अधिक बड़ा एक गाड़ी में चला रहा था। 8,000 तो तनख्वाह, 10,000 तो तनख्वाह है, लेकिन 8 लाख की गाड़ी चला रहा था। It's true. ये सच्चाई है in my life, मेरे जीवन में, in my family's life. मेरे परिवार के जीवन में। This is not true in the widow of Zarephath's life. और जारिफात के उस विधवा के जीवन में ही केवल ये सच्चाई नहीं है। It is true in many of my friends' life. और ये कई सारे मेरे मित्रों के जीवन में भी सही है। It is true in our own life. और मेरे ही जीवन में ये सही है। It is true in your life. ये आपके जीवन में ये सही है। Why are you struggling when God has given you big things? Why are you holding on to small things? और जब परमेश्वर ने आपको बड़ी-बड़ी चीजें दी है तो आप छोटी-छोटी वस्तुओं को धर कर क्यों बैठे हो? I was holding on to my bike. मैं अपने बाइक को पकड़ के बैठा था। God released it so that I can have better blessings in my life. परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र किया ताकि मैं अपने जीवन में और अधिक आशीष पा सकूं। Today, my friends, today you need to get into the secret place where God will talk to you. और आज आपको ऐसे परमेश्वर के उस रहस्य स्थान पर पहुंचना है जहां परमेश्वर आपसे बात करे। When God told me, give this bike, I was standing on the road near my bike. और जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस बाइक को दे दे, तो मैं बाइक रास्ते पर खड़ा था उस बाइक को पकड़कर। He didn't talk to me in that prayer closet. तो मैं उस प्रार्थना के गुप्त स्थान में नहीं था। Wisdom talks anywhere and everywhere. और ज्ञान कहीं पर भी आपसे बात कर सकता है। React to what God says. जो परमेश्वर कहता है उसके सामने सही प्रतिक्रिया करे। Release what God says. और जो परमेश्वर कहता है उसे स्वतंत्र करे। Many people are not able to release because there is a great reason. और बहुत से लोग ऐसे स्वतंत्र नहीं कर पाते अपने जीवन में क्योंकि बड़ा एक कारण है। I think this is something which you need to note. और इस बात को आपको ध्यान से देखना है। Let's turn to 2 Corinthians chapter 8 verse 5. और दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय उसके 5वें वचन को देखें। This Macedonian church was not just a giving church. और ये मकेदोनिया की जो कलीसिया थी वो केवल एक देने वाली कलीसिया नहीं थी। This is what everybody sees in that Macedonian church. और इस कलीसिया में जो लोग देखते थे वो यही था। Now this Macedonian church became one of the richest church of that age. That's called as a Philippian church. और ये जो मकेदोनिया की कलीसिया थी उस समय का सबसे धनी कलीसिया बन गया और वो फिलिपियों की कलीसिया बन गई। So the Philippian church
is the actual Macedonian church. तो जो फिलिपियों की कलीसिया थी वो सचमुच ये मैकेडोनिया की कलीसिया थी। When it was poor, it was called as Macedonian church. जब वो गरीब था तो उसे मैकेडोनिया की कलीसिया कही गई थी। When over a period of time it became rich, it was called as the church in Philippi. लेकिन ऐसा समय आया जब वो धनी बन गया तो फिलिपी का कलीसिया कहलाया। Now if you read the book of Philippians, you will see the riches which God provided them according to the riches of his glory. अगर आप फिलिपियों की किताब को पढ़े तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उन्हें धनी बनाया अपने ही धन के अनुसार। There is a reason इसका एक for कारण their है giving. उनके देने का। Let's see. Verse 5. I think you should underline this. 2 Corinthians chapter 8 verse 5. और दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय 5वां वचन, इसे निशान बनाकर रखे आप। And not only as we had hoped, they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरना उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। They gave themselves to the Lord and to Paul. और मकदोनिया की कलीसिया के लोगों ने पहले परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया, फिर पौलुस को भी समर्पित किया। Many people, they give themselves to the Lord. Oh, very beautiful. Praise the Lord. बहुत से लोग परमेश्वर को तो समर्पित करते हैं, बहुत सुंदर बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। But they never give themselves to a human father or a human spiritual father. लेकिन वो कभी भी अपने ही एक इंसानी आत्मिक पिता के ओर समर्पित नहीं करते। Or I feel the Bible doctrine is basically generational. और जो बाइबल की जो सिद्धांत की बातें हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली सिद्धांत है। It is generational. ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। You need to have a father in you. आपके जीवन में एक पिता का होना जरूरी है। When I look at the fatherless people, there is no spiritual father, there is no leader. They are extremely poor. They are suffering. और जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिनके जीवन में कोई आत्मिक पिता नहीं है, उनके जीवन में कोई अगुआ नहीं है, तो वो अपने जीवन में पीड़ा सह रहे हैं, वो बहुत ही दुख में है। It breaks my heart. ये मेरे हृदय को दुखी But I am not able to help them. लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। So I'll tell you something. You find a spiritual father. आप अपने आप के लिए एक आत्मिक पिता को पाएं। There are so many respectable, honest, good leaders in the society. और हमारे समूह में कितने सारे अधिक आदरणीय और बहुत ही अच्छे पिताएं हैं। They are good people. वो अच्छे लोग हैं। They are honest people. वो बहुत ही अच्छे लोग। Maybe if you go close, probably you will find some problems with them. अगर आप उनके और करीब पहुंचे तो शायद एक दो आपको उनकी गलतियां आपको दिखेगी। Give yourself to your spiritual father. एक आत्मिक पिता को आप अपने आप को समर्पित कर दें। It will enhance many crooked areas of your life. और आपके जीवन के कई टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो खोल देगा। I have a spiritual father. मेरे जीवन में एक आत्मिक पिता है, Pastor Susai Joseph. पासबान सुसई जोसेफ। Now he is a human being. वो एक इंसान है। Many people found fault with him. कई लोगों ने उनके ऊपर दोषी बनाया। I am so afraid of him. और मैं उनकी तरफ देखकर बहुत डरता हूँ। I am so respectful of him. मैं उनके विषय में बहुत आदर के साथ ध्यान रखता हूँ। I follow in his words. और उनके वचनों पर मैं चलता हूँ। I am very careful with his words. और वो जो बातें कहते हैं उससे मैं बहुत संभल कर रहता हूँ। I take notes from his words. तो जब वो बातें करते हैं मैं उनको लिखकर अपने किताब में लगता हूँ। And during the past many years, many times God has spoken to me through my father's words. और पिछले कई सालों में अपने पिता के इन शब्दों से ही परमेश्वर ने मुझसे बात की है। In fact, after I received him, I actually understood my human father. और सच बात यह है कि जब मैंने इन्हें स्वीकारा तब मैंने अपने प्राकृतिक पिता को भी पहचाना। Finance or blessings is not just in the area of money, it is a comprehensive area which covers everything. और ये जो आशीष है ये केवल पैसों के विषय में नहीं बल्कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आती है। Find a spiritual father. अपने जीवन में एक आत्मिक पिता को Give पाएं yourself to him. और अपने आप को समर्पित करें। And you break the poverty with your giving. और अपने जीवन की जो गरीबी के चक्रव्यूह है उसे आप अपने देने से उसे तोड़ दें।